Hi, dear fellows. Today we have with us Ms. Amara Aftab, the CEO of Pro AI Global, a consulting firm supporting the use of AI in business, industry, supply chain, education, sales, marketing, and project management. She has certifications and licenses in AI projects with Python, TensorFlow, generative AI, Power BI, and machine learning. Amara is rightly placed as the professional who is spearheading latest trend and technologies. Let's give a warm welcome to Ms. Amara and learn from what she is about to share with us, the implementation of AI in project management. Amara, I welcome you to the session. Please take over and you can start. Okay, thank you so much. Thank you so much for having me here on this platform. And then I would like to thank Mr. Faiz and all the organizers because being a corporate AI trainer, I have like I'm certified into multiple things. आपने तो अभी चार चीजों के नाम लिए, so I would like to share more in my next slides as well. But I really like that the people are very passionate about AI nowadays, and every industry are trying to dive into this, right? So today we will be talking about the shaping of the future of project management with the AI, because AI is integrating into every industry, right? And before moving to that, I would like to introduce myself. Like, I would like to add some more things. And I really like that the way like the host basically introduced me. So basically, I'm running a global AI community, okay, which in which we exist into 26 different countries nowadays now. And I have done my master's in applied statistics, so I'm statistician as well. I'm the AI researcher as well. I have done the first Pakistan's first AI podcast as well. We have done with the two different series of AI podcast. The first series of the AI podcast was with the AI experts, with the foreigner AI experts, actually, right? And the second series was in Pakistan. And I tried to convince the industry leaders to think about the AI and to integrate the AI into their department and to discuss and to do research regarding that. So, and then if we talk about the licenses and certification, with respect to the PMI, so I have done the certification into AI for the project management, AI into project management, and there are so many things, especially the generative AI into project management. And to be honest, guys, AI is a very outdated word now, because AI is just a single thing, and we are moving already towards a lot of things which are relevant to the AI, जो कि मैंने अपनी presentation के अंदर already add on किया है. And I would like you guys all to have a look on that कि हमारे पास AI से आगे और क्या चीजें आ चुकी हैं जिनके ऊपर हमें working करना बहुत जरूरी हो चुका है. So as I said that we are into 26 different countries right now, and we are growing, alhamdulillah. And what kind of leverage I am providing to the Pakistani people in that this community is specifically for the AI experts, but for the Pakistanis, I have given the leverage to the AI enthusiast as well. If you are the AI enthusiast, you can also be a part of it, right? बिकॉज हमें अपने पाकिस्तानियों को एक ऐसे मुकाम पर लेके जाना है, एंड टू बी ऑनेस्ट हमारे पास उस लेवल के एक्सपर्ट्स इस वक्त नहीं है. सो दैट्स अ मेन थिंग कि हमें फॉरेनर्स से डिफरेंट इंडस्ट्री में किस तरह से उनकी इंटीग्रेशन हो रही हैं वो सीखने के लिए हमें डेफिनेटली डिफरेंट फॉरेनर्स के साथ कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. Next, move on. Yeah, this is the first like series of AI podcasts which I have done with the multiple foreigner AI experts. ये सब different countries से different domain के अंदर, even if we are talking about आज तक हम जो है वो stress management के ऊपर training sessions ले रहे हैं, but AI इतना fast हो चुका है कि stress management की उसने different applications बना ली हैं, and people are playing with their emotions with respect to the AI, right? So at the left, at the right hand, there's a lady. She is a neuroscientist actually, and she have done a lot of good things into AI and neurology. And yes, what we will be discussing about in this session
basically, so my major main goal and the objectives are like why AI matters. But before that, I will go first into the AI and its different domains, जो कि हम सबको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And then we should think about like why AI matters for the project managers. Because अगर आपका why clear हो, everyone knows कि आपका why clear हो, then definitely आपके लिए बड़ी आसानी होती है कि आप किसी भी चीज के अंदर dive in कर सकें. आपका वो passion है, वह आपका वो level टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर कि जी मैं ये क्यों कर रहा हूँ और क्या इसकी जरूरत है. वैसे एक चीज तो बड़ी आजकल हर किसी के आगे बड़ी कॉमन है, जो हर कोई बोलता है कि जी एआई आ गया है तो हमारी जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी, राइट, हमें ना रिप्लेस कर दे. सो बात वही है, आपने हर किसी से ये सुना तो होगा कि जी एआई रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन एआई की स्किल्स सीखने वाले जरूर रिप्लेस कर देंगे. सो आई वुड लव दैट कि भाई हमारे पाकिस्तान में वो उस तरह की एआई की ऐसी फोर्स तैयार हो कि दुनिया भर में रिक्वायरमेंट होगी जी एआई में, हमें प्रोजेक्ट मैनेजर्स चाहिए हु कैन डील विद द एआई थिंग्स, और लोग कहें कि जी पाकिस्तान में वो सारे हैं. सो यू कैन रिक्रूट फ्रॉम देयर प्लेसेस एंड यू कैन डिलीवर और you can sublet your projects to those people actually who are into Pakistan, right? And then we will be discussing about the understanding of the impact of AI on project management. Okay, क्योंकि इसके impacts का पता होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि once we will get to know about the impacts of AI, so that would be the best thing that you have. If you have the understanding of its impact, then you will be able to at least elaborate or discuss with other people, और उनको भी आप समझा सकते हैं कि किस तरह से हमने एआई को अपनी लाइक इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इस दुनिया के अंदर बेसिकली हमने इंटीग्रेट करना है. Then we will be moving forward towards the benefits of incorporating the AI. Okay. And then there will be how AI enhance the decision making, resource optimization, identify the key AI tools. अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बताती चलूं कि हम यूजली जब सेशंस आप कहीं पे भी अवेयरनेस सेशंस लेते हैं तो लोग आपसे ये तो डिस्कस कर लेते हैं कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और शायद आपको पता भी होंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं इसके, लेकिन वो कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसको यूज करके आप अपनी जिसको इंटीग्रेट करके आप अपनी डेली लाइफ में अपने काम को आसान बना सकते हैं. एंड देन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा कि यार मैंने एआई का जो है वो टूल इंटीग्रेट किया है, एंड नाउ आई कैन से दैट कि जी I have a little bit knowledge about the AI or to integrate the AI into PMI basically, right? So we will be exploring the AI tools. और क्योंकि भी हमारे पास कोई 2-3 घंटे नहीं है कि हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें, तो मैं टूल्स आप लोगों को जरूर यहाँ बताऊंगी और शेयर करूंगी. लेकिन एक टूल मैं जरूर आपके साथ जो है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आई वुड लव टू शो दैट कि वो किस तरह से हमें हेल्प कर रहा है और कौन कौन सी डोमेन्स में आपको हेल्प कर सकता है. मैं खुद उस पर आपको जो है वो एक हैंड्स ऑन एक सेशन दिखा दूंगी ताकि आपके लिए भी बड़ी आसानी हो. और बड़ी प्यारी चीज ये है कि उस टूल को परचेज यूजली व्हाट हैपन कि हम इसलिए जो है टूल्स वगैरह को परचेज नहीं करते बिकॉज वी थिंक दैट कि जी बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं और हम इसको ले लें, हमें यूज करना नहीं आता है, देन व्हाट. बट द पॉइंट इज कि उस पे एक्चुअली न्यू ईयर की सेल भी बड़ी अच्छी चल रही है विच इज जस्ट $2, सो ऑल यू कैन गेट दैट एज वेल. ऑल्दो आई एम नॉट द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट टूल, बट मैंने खुद कल जो है वो $2 का कल परचेज किया है, एंड दैट्स वेरी अमेजिंग बिकॉज आई यूज टू यूज आर टूल. बट ये है कि अभी उसमें एक अच्छी ऑफर भी है, सो अगर आप लोग प्रैक्टिस भी करना चाहें तो वो आपके लिए बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट उससे क्रिएट हो सकता है. Now let's move on to the artificial intelligence. Everyone knows about it nowadays, and but the point is that this is not a buzzword, right? ये और दूसरी चीज ये कि there are two things. There are some pros and cons. If we talk about the pros, so बहुत सारी positive चीजें आपको पता चलती हैं, and cons you know about that. मैं इसको आसान अल्फाजों में इस तरह कहना चाहूंगी कि इसके डार्क साइड्स भी हैं और इसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं. पॉजिटिव साइड पे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं विच मीन्स कि ये आपका टाइम जो है वो बहुत शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से आपको काम दे देता है, ठीक है, जिसकी एग्जांपल्स भी हम आगे देखेंगे. और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में इट हेल्प्स यू अ लॉट, राइट. बट द डार्क साइड्स आर दोज कि जिसमें अगर आप इसको इंटीग्रेट नहीं करते हैं आज,
तो फिर आप खुद जो है कुछ टाइम के अंदर देख रहे होंगे कि इसके साइड इफेक्ट्स किस तरह से हैं। अच्छा, देर आर टू डिफरेंट सब हेडिंग्स इनसाइड द डार्क साइड एज वेल, राइट। एक तो वो चीज है, एक तो डार्क साइड में आपके पास नंबर वन हेडिंग हुआ थी कि आपको जब वो यूज करना नहीं आएगा तो आप पे पर्सनली उसका जो है ना इफेक्ट होगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि आप अवेयर भी नहीं होंगे चीजों से। जब आप अवेयर नहीं होंगे चीजों से तो आप हमेशा एक डर में रहेंगे, राइट। आपके सामने कुछ लोग होंगे जो कि इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे, तो आप खुद भी एम्बैरस फील कर रहे होंगे कि यार आई एम द यू नो चीफ लेवल ऑफ दिस कंपनी एंड ऑल, बट मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। तो दिस इज द रियलिटी, बिकॉज आई रिसेंटली हैड अ कॉल विद वन CIO एंड उन्होंने मुझे कॉल की जब हमारी वी रिसेंटली हैड वन फर्स्ट पाकिस्तान फर्स्ट ग्लोबल AI समिट। तो समिट से पहले ही कॉल्ड मी एंड ही सेड टू मी कि हमारा आई एम मूविंग टुवर्ड्स दुबई, बट द पॉइंट इज कि आपने जो कम्युनिटी डेवलप की है इससे मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, और मेन रीजन है कि आई एम द CIO ऑफ अ कंपनी, बट मुझे डर लग रहा है कि मेरी जॉब जो है वो खतरे में आ सकती है, बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द AI। और जो CIOs हैं अब उनकी भी डेजिग्नेशंस जो है वो ऑलमोस्ट आपकी चेंज होके वो CAIOs की तरफ जा रही हैं, राइट। नाउ CIOs विल बी CAIOs नाउ, चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर। सूनर और लेटर ये चीज आपकी हो जाएगी। पाकिस्तान में देर आर 2 to 3 कंपनीज जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी है, एंड दे आर हायरिंग द पीपल विद दिस डेजिग्नेशंस आल्सो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द AI। जैसे कि मैंने भी बताया कि AI में अभी हम बात करें कि जी AI is the only thing, but the reality is that AI is not the only thing, right? We have the ANI, we have the generative AI, we have ethical AI, we have AGI, ASI, SSI, and there will be a lot more, right? So पहले तो हम AI को समझ लें, ठीक है, देन उसके बाद आई वुड प्रेफर कि जेनेटिव AI को समझा जाए। अभी यहाँ पे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों पे नहीं जाऊंगी, आई वुड गो विथ सम वेरी वी कैन से दैट कि बहुत इजी अल्फाज में मैं चाहूंगी कि आप लोगों के साथ मैं इसको डिस्कस करूं, क्योंकि और इस तरीके से डिस्कस करूं कि आप लोग हर बंदा उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर सके, ठीक है। AI की अगर हम बात करें, सो हमारे फोन्स में सिरी है। सो वी नो दैट के जी सिरी जो है वो एक AI का काम कर रही है हमारे लिए, राइट। जेनरेटिव AI के ऊपर अगर हम बात करें तो देर आर लॉट ऑफ कंपनीज जिनके व्हाट्सएप जिनके चैट बॉट्स जो है वो इंटीग्रेट है उनकी वेबसाइट्स पर, राइट। सो दोज चैट बॉट्स आर द IVR बॉट्स, राइट। बट जेनरेटिव AI बॉट क्या, अच्छा IVR बॉट में क्या होता है कि आपने 4 डेटा उनको दे दिए हैं कि जी दीज आर द 4 पॉइंट्स, और किसी ने भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है, या इफ आई वॉन्ट टू टेक अपॉइंटमेंट ऑफ माई मदर एट आ खान, तो मेरे पास 4 ऑप्शंस आ जाते हैं एंड आई हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम, मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। बट जेनेटिव AI क्या करता है कि इट कैन क्रिएट अ न्यू कंटेंट, राइट, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट और इमेजेस, डेटा, यानी डेटा मॉडलिंग के लिए भी आपका जेनेटिव AI इज द अमेजिंग थिंग। एंड PMI की जो रिसेंटली जो सर्वे हुआ है उसमें जेनरेटिव AI की इंटीग्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स किया गया है, एंड उसके ऊपर भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि जो उसमें सर्वे सर्वे हुआ है तो जितने भी टॉप लीडर्स हैं द PMI एक्सपर्ट्स, वो किस तरह से AI को इंटीग्रेट कर रहे हैं एंड व्हाट आर द परसेंटेजेस। अच्छा, एथिकल AI मैं चाहती हूँ कि ये सारे पॉइंट्स पे थोड़ा थोड़ा सा जो है एक जेनेरिक वे में आप लोग को एक आइडिया दे दूं। अच्छा, एथिकल AI इज समथिंग के एक छोटी सी एग्जांपल मैं देती हूँ कि मैंने अपनी एक इमेज जनरेट की है AI के थ्रू, जिसमें मैं आई वाज ईटिंग अ बर्गर विद द एलॉन मस्क, ठीक है। आई एम वाचिंग अ मूवी विद द एलॉन मस्क। अब बात यहाँ पर आती है कि क्या ये इथिकली राइट है या रॉन्ग है कि इलॉन मस्क ने इस चीज का कंसर्न दिया था उस एप्लीकेशन को, जिस एप्लीकेशन ने या जिस सॉफ्टवेयर ने मेरी उसके साथ इमेज जनरेट करने की मुझे इजाजत दी है, राइट। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो इथिकल AI में फॉल करता है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने अपनी एक नेशनल AI पॉलिसी जनरेट की है जिसके अंदर उन्होंने बकायदा मेंशन किया है दैट XYZ देयर आर सम एप्लीकेशंस जो कि उन्होंने बैन कर दी है यूरोप के अंदर, कि क्योंकि उन एप्लीकेशंस के अंदर वो आपके आई रेटिना का एक्सेस मांगते हैं, आपके थंब प्रिंट्स मांगते हैं,
And once you will get that, because there are a lot of people जो कि अपने account numbers, बैंक account numbers, अपने ID passwords अपने notepad में सेव करते हैं अपने फोन के अंदर, राइट इवन मैंने खुद ये सेव किया हुआ था, बट जब मुझे ये चीजों का आइडिया हुआ कि लाइक यूरोपियन यूनियन ने इस तरह के लॉज बनाए, देन आई रिमूव सच पासवर्ड्स फ्रॉम माय फोन एक्चुअली, क्योंकि द पॉइंट इज कि आप अपना पूरा एक्सेस बेसिकली उस चीज को दे देते हैं, राइट सो वो आपकी एथिकल कंसिडरेशन के अंदर चला जाता है, विच मीन्स कि एआई में यहाँ तक सोचने की सलाहियत आ चुकी है कि जिसमें सोचने की इंसानों को जरूरत है अब कि जी एथिकली हम अलाउ कर रहे हैं किसी चीज को कितना और किस लेवल का, राइट इवन आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू वॉच अ मूवी दैट इज CTRL, नेटफ्लिक्स पे वो अवेलेबल है। उसको जब आप देखेंगे देन यू विल ऑल्सो गेट द आइडिया कि किस तरह से एथिकल एआई के ऊपर जो है वो दैट इज अ वेरी ह्यूज चैलेंज, उसको किस तरह से जो है वो इंटरप्ट किया जा रहा है, वो चैलेंजिंग कितना ज्यादा हो चुका है, एवरीथिंग इज देयर इनटू दैट। अच्छा, दैट इज अ इंडियन मूवी, और बड़े स्पेशली अपने किड्स, अपने बच्चों को जरूर बोलिएगा कि वो देखें, स्पेशली गर्ल्स को जरूर बोलिएगा कि वो देखें, और जो टीन एज के बच्चे हैं उनको जरूर बोलें। द रीजन बिहाइंड कि जब बिकॉज देखें अब द पॉइंट इज कि हर बंदा ना स्ट्रेस से गुजरता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इस दुनिया के अंदर कोई बंदा हो जो बोले कि जी मुझे जिंदगी में कभी स्ट्रेस नहीं हुआ या मैं कभी स्ट्रेस से नहीं गुजरा। आई एम ऑल्सो NLP ट्रेनर एज वेल, सो आई नो दैट के पीपल कैन पास फ्रॉम दैट, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। सो इन दैट मूवी उन्होंने बाकायदा पूरी एक चीज दिखाई है कि किस तरह से एक टीन एज कपल जो है वो एक स्ट्रेस से गुजरता है, फिर वो उस इमोशन, वो लोनलीनेस के इमोशन को फुलफिल करने के लिए एक एआई से बात करना स्टार्ट करते हैं, एंड देन वो जब एआई को अपना एक्सेस देते हैं अपने लैपटॉप का, अपने फोन का, तो वो उसका मिस यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ऑल द लाइक ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली कम्स इनटू द एथिकल एआई, ठीक है। एंड देन वी विल मूव ऑन टू द AGI। AGI इज द थिंग जिसकी वजह से इफ यू गाइज हैव द आइडिया कि सैम ऑल्टमन को रिसेंटली जो है वो अभी ओपन एआई से जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया था, और यू कैन से दैट कि जी उन्होंने रिजाइन दे दिया था। सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड कि AGI इज समथिंग, अभी तक हमारे पास जो एआई है ना उसमें इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। बट AGI इज समथिंग जो कि आपके अंदर फीलिंग्स लेके आने की जो है ना कोशिश की जा रही है, and once things will be into that तो it will be a very dangerous thing। इवन कि जिस बंदे ने एआई को इनिशिएट किया है उसके अपने स्टेटमेंट हैं कि अगर एआई की बढ़ती हुई एवोल्यूशन को नहीं रोका गया तो फिर ये बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन होगी, और ये बहुत जल्द होने वाली चीजें हैं, ये ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत जमाने लगेंगे। हम सबके सामने हैं कि जी ChatGPT आ गया तो जो कंटेंट क्रिएटर्स थे वो इधर उधर हो गए हैं सारे, राइट। हमारे पास कैनवा आ गया है, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट अ डिजाइनर, बट ये पूरी प्रेजेंटेशन मैंने कैनवा पे डिजाइन की है, ठीक है। मुझे अब किसी डिजाइनर को पैसे दे के कोई लोगो भी डिजाइन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज हाँ ठीक है, प्रोफेशनल वेबसाइट इज समथिंग डिफरेंट कि उस पे मैं करवा लेती हूँ, इट डिपेंड्स, इवन वेबसाइट भी आपके पास एआई से जनरेट हो जाती है, ठीक है। सो वी नीड टू थिंक अबाउट एवरी पर्सपेक्टिव जो कि एआई की तरफ से आ रहा है किस तरह से है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू why AI basically matters for the project managers, ठीक है। इसमें हम चलते हैं तो वी हैव, मैंने बहुत कोशिश की है कि इसको मैं प्रिसाइज रखने की कोशिश की है, ताकि एक्चुअली जो आपके टूल्स है ना उस पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में जरूर आपको दिखा सकूं कि वो हम किस तरह से कर सकते हैं। सो एआई मैटर क्यों करता है? टू ऑटोमेट द रेपिटेटिव टास्क, जैसे मीटिंग नोट्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, डिसीजन मेकिंग से रेलेवेंट जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस हैं, इट इम्प्रूव्स योर एफिशिएंसी, रिड्यूस एरर्स, और फ्री अप द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड लीडरशिप। अच्छा, ये जो वर्ड यहाँ पर है, फ्रीज अप द टाइम फॉर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड लीडरशिप, आप सारे इस वक्त इंडस्ट्री लीडर्स हैं, राइट, और आप सब ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑक्युपाइड होते हैं बहुत सारे डिफरेंट टास्क के अंदर। तो अगर आपको कोई ऐसा एआई असिस्टेंट मिल जाए जो कि आपके कामों को बहुत क्विकली कर दे,
तो आई बिलीव कि यू विल फील सम रिलैक्सेशन, और आप उस रिलैक्सेशन मोड के अंदर कुछ बेटर ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर फायज साहब की बात करूं तो माशाल्लाह ही इज ऑल्सो अ ग्रेट ट्रेनर एज वेल, तो इनको काफी इनविटेशंस आते हैं। अगर उनका काम एआई बैकएंड पे असिस्ट कर रहा हो तो उनको भी टाइम मिल जाएगा कि वो जाके डिफरेंट प्लेसेस को विजिट कर सकें, और डिफरेंट, जैसे कि आप फरहान साहब, आपको भी अभी एक कॉर्पोरेट डिनर पे जाना है, ऑल्दो आपकी जगह कोई और एआई नहीं जा सकता, लेकिन आपके जो एआई से रेलेवेंट जो आपके काम है, अब लेट्स सपोज मैं इस मीटिंग की अगर बात करूं तो आप अगर एआई असिस्टेंट रखते हैं यहाँ पे, तो आप शायद अभी कॉर्पोरेट डिनर के लिए तैयार हो रहे होते, और वो एआई जो असिस्टेंट है वो सारी मीटिंग मिनट्स, मीटिंग नोट्स वगैरह सारी चीजें बना भी रहा होता। बट द एग्जैक्टली। पॉइंट इज कि ह्यूमन का होना भी बहुत जरूरी होता है, वो आपको एक इम्पोर्टेंस जो है ना वो दिला रहा होता है। लेकिन ग्रेजुअली चीजें हमारे पास चेंज होती जा रही हैं। एंड या लेट्स मूव ऑन टू द पीएमआई एनुअल ग्लोबल सर्वे। ठीक है, जब पीएमआई का एनुअल ग्लोबल सर्वे हुआ 2023 के अंदर, तो वहां पे ये पता चलता है कि जी इंडस्ट्री लीडर्स का कहना ये है कि 21% दे सेड दैट के एआई जो है वो पीएमआई की रिसर्च में यूज किया जा सकता है, राइट। 82% जो सीनियर लीडर्स थे उन्होंने कहा कि जी एटलीस्ट इट हैज सम इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, एंड 91% said they believe actually कि एटलीस्ट अ मॉडरेट इम्पैक्ट जो है वो आपके प्रोफेशन के ऊपर जरूर आ रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये सारी परसेंटेजेस एक तरफ, आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस एक तरफ, जब आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके खुद से चीजों को करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप बोलेंगे यार मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, और लिटरली बहुत मजा आएगा आपको, राइट। सो द रोल ऑफ एआई इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो की फीचर्स पे अगर चलते हैं, सो द इंटेलिजेंट डिसीजन सपोर्ट आपको मिल सकती है, इसको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। प्रोजेक्ट एनालिटिक्स, टीम कोलैबोरेशन एंड प्रोसेस ऑटोमेशन। अब ये चीजें किस किस तरह से होंगी, हम इसको फर्दर जो है वो देखना चाहेंगे। कि इंटेलिजेंट डिसीजन सपोर्ट का क्या मतलब होता है कि जी रियल टाइम डाटा की एनालिसिस और इनसाइट्स वो आपको निकाल के दे देगा, राइट। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, वो आपके सामने प्रोजेक्ट के जो भी आउटकम्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। पैटर्न रिकॉग्निशन जो भी प्रोजेक्ट के डाटा की हैं वो आपके पास आ जाएंगी। एंड ऑटोमेटेड रिकमेंडेशंस भी आना शुरू हो जाएंगी। लेट्स सपोज कि आपने कोई भी वेदर से रेलेवेंट कोई इवेंट करना है, तो इनवीडिया ने भी रिसेंटली लॉन्च किया था, रिसेंट तो नहीं, अब तो 3 महीने हो चुके हैं इस चीज को, कि जिसमें इनवीडिया ये भी बता देता है कि जी किस कंट्री के सराउंडिंग में आफ्टर 2 इयर्स किस तरह का वेदर आ सकता है। ठीक है, ये उसने जनरेटिव एआई के थ्रू अपनी एक प्रोडक्ट निकाली है मार्केट के अंदर, कि जिसमें दे आर प्रोडिक्टिंग लाइक दैट, राइट, एंड दे आर कनेक्टिंग विद नासा, एंड दे आर कनेक्टेड विद सम अदर बिग ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, कि जो वेदर की प्रिडिक्शंस के ऊपर काम कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज के रिकमेंडेशंस जो है वो आपके पास ऑटोमेटेड सामने आ जाएंगे। फिर जब हम प्रोजेक्ट की एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं, उसके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को ट्रैक करने की, उसके लिए भी हमारे पास एआई के डिफरेंट टूल्स हैं, जिसमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, बजट की मॉनिटरिंग हो जाएंगी, टाइमलाइन ऑप्टिमाइजेशन, रिस्क असेसमेंट। एंड इसमें जो टूल्स आपके पास, एक तो ये है कि आपके पास मार्केट में अवेलेबल टूल्स हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि आप किसी भी कंपनी से कस्टमाइज टूल्स बनवाते हैं अपने स्पेसिफिक कंपनी के लिए या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, सो देर आर टू थिंग्स, एक तो आपको मार्केट में अवेलेबल टूल्स जो हैं वो यू कैन पे, यू कैन बाय दैट, एंड देयर इज अनदर थिंग कि आप कस्टमाइज टूल जो हैं वो अपने लिए बनवा सकते हैं। देन टीम कोलैबोरेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर सबसे बड़ी एक चीज ये आती है कि जी टीम के कोलैबोरेशन में बहुत चैलेंज आता है हमारे पास। ठीक है, बट जब आप एआई के डिफरेंट टूल्स को यूज करते हैं तो इट हेल्प्स यू कि जी वो आपकी ऑटोमेटेड जो समरीज होती हैं वो आपके सामने आ जाती हैं, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स आ जाते हैं, डिफरेंट नॉलेज शेयरिंग्स भी आती हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बड़े मजे की मैं आपको यहाँ बात बताती हूँ। मैं जानना चाहूंगी आप सब लोगों से कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैट जीपीटी के अंदर 2 विंडोज देखी हैं अभी तक। यूजली तो एक ही विंडो नजर आती है, 2 विंडोज किसने देखी है? मैं चाहूंगी कि कोई किसी ने देखी तो जरूर वो जवाब दे, और नहीं देखी तो भी बता दें। नहीं, नहीं देखी। नहीं देखी चैट जीपीटी के अंदर। अच्छा, यूजली क्या होता है कि जब हम चैट जीपीटी की बात करते हैं ना सर, तो हर कोई बोलते हैं यार ठीक है, हर कोई यूज कर रहा है इसको, ठीक है, लेकिन रियलिटी ये है कि लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया।
चैट जीपीटी के अंदर आप अपना पर्सनल बॉट बना सकते हैं, ठीक है। आप उसके अंदर टू डिफरेंट स्क्रीन देख सकते हैं, और उस टू डिफरेंट स्क्रीन के अंदर आपने करना क्या होता है, जो टीम कोलैबोरेशन पे आके मुझे ये चैट जीपीटी याद आया है, आपने अपना एक बॉट बिल्ड करना होता है। यूजली क्या होता है कि जी जो नॉन टैकी लोग होते हैं, कोडिंग उनको नहीं आती है, ऑल्दो मुझे भी कोडिंग नहीं आती, वो डरते हैं कि जी हम अपना बॉट कैसे बिल्ड करेंगे। लेकिन उस चैट जीपीटी की जो टू विंडोज ओपन होती है, तो उस वन विंडो के अंदर क्या होता है कि आप अपना डेटा उसको देते हैं। लेट्स सपोज कि आपने कोई भी, यू आर द सीनियर मैनेजर और यू आर द जीएम ऑफ प्रोजेक्ट, एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। आपने क्या किया कि अपना डाटा जो है उसकी वन विंडो, जो लेफ्ट साइड पे विंडो ओपन हो रही है, वो आपको पेड चैट जीपीटी के अंदर ऑप्शन मिलता है। आपने लेफ्ट साइड पे उसका सारा डाटा इनपुट किया। यूजली क्या होता है, आप चैट जीपीटी की कोई भी चैट किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, देयर इज नो सच काइंड ऑफ ऑप्शन कि आप अपनी चैट शेयर कर सकें, ठीक है। लेकिन जब आप ये अपना बॉट बिल्ड करते हैं, तो यू हैव दैट ऑप्शन कि जी आपने जो अपना बॉट बिल्ड किया है, जो आपने लेट्स सपोज कोई भी डाटा उसको दिया है, सो यू कैन put that data into the left side of the window, and right side पे आपको उसके responses दिखा रहा होगा, and then you can share that chat और with your team members। तो फिर टीम मेंबर्स को आपसे आके अगेन एंड अगेन उस प्रोजेक्ट से रेलेवेंट कुछ पूछने की जरूरत नहीं होगी। देख अच्छा, टीम मेंबर के पास जस्ट वन विंडो ओपन होगी, राइट, जिस तरह चैट जीपीटी में आपकी एक सिंगल विंडो ओपन होती है, एंड दे कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम दैट विंडो जो कि आपने उनके साथ लिंक शेयर किया है, ठीक है। So they don't need to call you again and again or email you again and again to ask about anything regarding the project। सो चैट जीपीटी का जो वो वाला पेड वर्जन है, जिसको एक्सप्लोर अभी तक बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, सो आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू एक्सप्लोर दैट एज वेल। क्योंकि इसमें, बिकॉज आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, तो मैं बेसिकली हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराती हूँ इसके ऊपर, ठीक है। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से ये होता है कि हम जब, लेट्स सपोज आई हैड अ सेशन विद यूनाइटेड किंग। अब लोग अक्सर बोलते हैं जी बेकरी वाले क्या कर रहे हैं एआई का, लेकिन रियलिटी ये है कि जी बेकरी हो या कोई दूसरी इंडस्ट्री हो, देयर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाई चेन, फॉर मार्केटिंग, फॉर फाइनेंस, फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो एवरीवन टू बी ऑनेस्ट नीड्स द ट्रेनिंग, द हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, ठीक है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे पास। तो चैट जीपीटी की बेसिकली आप वो जो चैट है वो अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड आपकी टीम जो है उससे कोई भी जो है नॉलेज, जो भी उसको क्वेश्चन करना है, वो वहां से जो है वो क्वेश्चन करके पूछ सकती है बगैर आपको तंग किए, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर थिंग विच इज अ प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है। प्रोसेस ऑटोमेशन के अंदर आपकी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, वर्क फ्लो एंड स्टेटस अपडेट, लाइक दीज ऑल थिंग्स कैन बी ऑटोमेटेड जस्ट वाया डिफरेंट एआई टूल्स, जो कि हम जिसको आगे हम अभी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, राइट। Next, yes. So let's talk about the brighter side of basically AI into project management, जिसकी जो हर कोई सुनना चाहता है कि जी भाई बेनिफिट्स क्या हैं इसके, ठीक है। वाई हमने देख लिया, अब बेनिफिट्स पे बात करते हैं। बेनिफिट्स को भी मैंने टू डिफरेंट डेफिनेशंस में लाइक डिवाइड कर दिया है। या आई विल सजेस्ट यू द टूल्स। मैंने स्टे कनेक्टेड विद द सेशन मिस, आई थिंक मिस मिस और मिस मदीहा, या सो आगे आपको वो टूल्स भी नजर आएंगे जो कि प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए और इन सारी चीजों के लिए हैं। और अगर कोई भी ऐसा टूल होगा जो मैं मिस कर जाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करके इसको प्रिसाइज करने की कोशिश की है, तो यू कैन आस्क मी वाया व्हाट्सएप, वाया लिंक्डइन, सो आई कैन हेल्प यू विद दैट टू, ओके। सो क्वांटिटेटिव बेनिफिट्स के ऊपर अगर हम जाते हैं, तो इट सेव यू 20 to 30%, कॉस्ट रिडक्शन में 15 to 25, एंड मे बी समटाइम इट हैपेंस के मोर देन दैट इट हेल्प्स यू। अच्छा, इसमें बल्कि कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर एक मैं बड़ी प्यारी बात आपको बताती हूँ, बल्कि इफ आई कैन शो यू गाइस समथिंग, सो आई वुड लव टू शो यू, गिव मी अ सेकंड। देखिए यूजली होता है कि प्रोजेक्ट जो है वो किसी भी तरह के होते हैं आपके पास, राइट। सो द पॉइंट इज कि और होता क्या है, एआई इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे परसीव करते हैं और आप उसका किस तरह से जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो फेसबुक आप सब लोग यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम भी करते होंगे, कहीं कुछ कम ज्यादा होगा, दैट इज समथिंग एल्स, बट द पॉइंट इज कि हम सब यूज करते हैं, राइट।
So I was someone actually suggested me one application, and then फिर मैंने जो है वो अपनी usually क्या हो रहा था कि Facebook अपनी जो है ना वो बना के दे रहा था. Let me show you from here. फेसबुक अपनी एआई से जनरेट करके दे रहा था लोगों को इमेजेस. ठीक है. तो अब उसमें हुआ क्या कि लोग अपनी इमेजेस बना रहे थे और खुश हो रहे थे जी, वो फेसबुक पे लगा रहे थे कंटिन्यूअसली. मैंने क्या किया कि मैंने उससे अपनी डिफरेंट वीडियोस बनाई. ठीक है, एआई जनरेटेड मैंने उससे वीडियोस बनाई. जब मैंने वो सारी वीडियोस बना ली ना, तो बनाने के बाद मैंने किया क्या कि मैंने उन सारे वीडियोस को कंपाइल किया. कंपाइल करने के बाद जब मैंने उसको कंपाइल किया तो उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ, एंड देन आई विल टेल यू गाइस कि इसके पीछे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कॉस्ट रिडक्शन का क्या लिंक है. लेट मी शो यू. This video is AI generated. That means you never gave such poses and never changed clothes like these? Never, never, never. God. I never tried these dresses even. Amazing. Even this gives me motivation to go to the gym, right? So basically, what exactly happened with this? और इसमें कॉस्ट रिडक्शन का सिलसिला किस तरह से जनरेट होता है, मैं ये बताना चाहती हूँ. यूजली व्हाट हैपेंड के खाड़ी है, ब्रेंजा है, देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स, राइट? सो अगर कोई भी ब्रांड जो है वो अपनी मार्केटिंग उसको एक प्रोजेक्ट किसी भी एजेंसी को, लेट्स सपोज किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग और इस तरह का एड बनाने का कोई टास्क मिलता है, प्रोजेक्ट मिलता है, तो वो क्या करते हैं? दे हैव टू हायर अ मॉडल. They have to hire a model. They need to hire the photographers, videographers, video editors. They have to rent out the set as well. So वो सारी कॉस्ट अगर आपकी लेट्स सपोज आपकी 1 मिलियन की जा रही है, ठीक है, तो क्या बुरा है कि अगर 0.1 मिलियन के अंदर आपका वो एआई से एड जनरेट हो जाए. ठीक है. सो कॉस्ट रिडक्शन जो है वो आपकी 15-25 नहीं बल्कि वो 80% पे भी जा सकती है. सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप एआई का यूज किस तरह से करते हैं. कहने को लोग जो हैं वो इस फेसबुक की इस एप्लीकेशन से अपनी खाली वो इमेजेस बना बना के खुश हो रहे थे कि जी मैं तो माशाल्लाह बड़ा हैंडसम लग रहा हूँ या खूबसूरत लग रही हूँ और बहुत स्लिम लग रही हूँ. बट इन रियलिटी आप उसको अपने बिजनेस में कैसे लेकर आ सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. सो एआई आपको सोचने का मौका दे रहा है कि आप किस तरह से किस चीज को यूज कर सकते हैं. ठीक है. देन इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी के ऊपर बात है. तो एआई आपकी एक्यूरेसी पे भी बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है. 40-50% उसने काफी हद तक. इवन हम अगर चैट जीपीटी को यूज कर लें, जेमिनाई को यूज कर लें, क्लॉड को यूज कर लें, तो हमारे पास कितना जबरदस्त कंटेंट वो देता है, वो आप सबको एक अच्छा एक्सपीरियंस ऑलरेडी होगा उसका. और अगर किसी ने क्लॉड या हाइकू वगैरह यूज नहीं किया है तो उसका भी मैं आप लोगों को एक छोटा सा एंड में एग्जाम्पल दिखा दूंगी कि हम उसको किस तरह यूज कर सकते हैं, कैसे उससे चीजें हमारी बनाई जा सकती हैं. सो दैट विल ऑल्सो हेल्प्स यू. एंड क्वालिटेटिव बेनिफिट्स में जाते हैं तो वही बेटर स्टेक होल्डर्स आपको मिल सकते हैं, आपकी टीम जो है वो हाई सेटिस्फाई भी हो सकती है. एंड इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज ये होती है कि आपको डिफरेंट और क्रिएटिव माइंडसेट के लोगों से मिलने का, बैठने का, उनसे सीखने का, उनको समझाने का मौका मिलता है. देखिए, you all guys are professionals and you have extreme experience, like huge experience into project management, right? अब एक बंदा जो कि सिर्फ एआई के टूल्स जानता है, उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पी नहीं पता, वो कैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इंटीग्रेट करेगा, वो उसको नहीं पता. लेकिन आप जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को पूरा जानते हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस एंड डिग्रीज एंड
द एक्सपीरियंसेस, अगर आप एआई को इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे तो आपकी अपनी स्किल्स इंप्रूव होंगी एंड देन यू विल बी कैपेबल टू डू दैट, और आप एक राइज एंड शाइन वाली सिचुएशन में होंगे. आई हैड अ पॉडकास्ट विद समवन एक्चुअली, बल्कि नहीं, मेरा एक ट्रेनिंग सेशन था, तो वहां पे मुझसे किसी ने कहा कि जी मैडम हम एआई में किस तरह से चले जाएं. तो मैंने कहा आपको एआई में जाने की जरूरत नहीं है, आप एआई को अपनी फील्ड के अंदर लेकर आए. ठीक है. अब मुझे आप एक बात बताएं, पाकिस्तान में नेशनल एआई पॉलिसी बनी है. ठीक है. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट. ठीक है. ऑल्दो उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया अभी तक, ड्राफ्ट उसका 1.5 साल से सबमिटेड है. लेकिन एक बात सोचने वाली ये है कि एआई की पॉलिसीज बनाने वाले जितने लॉयर्स हैं, क्या उन लॉयर्स को एआई आती है? ठीक है. तो सवाल ये है कि लॉयर्स को एआई सीखनी है या एआई ट्रेन लोगों को लॉ पढ़ना है. सो लॉ पढ़ना तो लाइक 5 years आपने वहां पे अलग लगा देने हैं एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ मोर टाइम. सो बेस्ट ऑप्शन इज दैट कि जो जिस डोमेन के अंदर है वो उस डोमेन में रह के एआई को कैसे इंटीग्रेट कर रहा है. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन देम. ठीक है. सो बेनिफिट्स के अंदर हमारे पास अगेन वही सारी बातें अगेन आ रही हैं कि जी आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव करता है. और रिस्क मैनेजमेंट, हाँ, बेटर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं बात ही करना चाहूंगी कि ये आपको अर्ली रिस्क डिटेक्शन के ऊपर काम करके दे सकता है. अभी एक छोटी सी आपको मैंने वो एड जो दिखाया, बेसिकली अपनी एक वीडियो दिखाई जिसमें मैंने उनमें से कभी भी कोई ड्रेस कभी वेयर नहीं किया, मैंने कभी देखा नहीं है, बट मेरी ही इमेज से वो सारे ड्रेसेस जो है वो वेयर किए हुए थे, मॉडलिंग जो की हुई थी. उससे होता है कि लेट्स सपोज कि अगर मैं अगेन ब्रांड की तरफ जाती हूँ, निशात, जो कि मुझे पसंद है बेसिकली, तो निशात की अगर हम बात करें या अलमीरा की बात करें, तो उन्होंने लेट्स सपोज अगर ब्लैक ड्रेस की अपनी मॉडलिंग करवानी है, तो वो एआई से पहले चेक कर सकते हैं कि जी ब्लैक ड्रेस जो है वो ब्लैक साइड के बैकग्राउंड्स के साथ जो है वो मॉडलिंग करता हुआ ज्यादा इनहांस होगा या वो ब्राइट साइडर की तरफ जो है वो ज्यादा इनहांस होगा. ठीक है. सो एआई से आप इस तरह की टेस्टिंग्स भी कर सकते हैं, विच मीन्स के अर्ली रिस्क डिटेक्शंस के ऊपर भी आपके पास जो है ना वो चीजें आ सकती हैं. एंड ये सारे पॉइंट्स हर बंदे के अपने जो करंट आप लोग के प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर आप सब इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं. राइट. लेट्स मूव ऑन टू द सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस साइड. राइट. सो डेटा प्रोटेक्शन में इट हेल्प्स यू अ लॉट. ठीक है. इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, अच्छा इंक्रिप्शन के ऊपर एक बड़ी प्यारी बात है. मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं इतना ज्यादा टेक्निकल ना हूँ कि जो है लोग बोले कि जी मेरा ख्याल है टाइम हो गया है और चलते हैं. आई वांट दैट कि हर किसी की डेली बेसिस पे जो चीजें जिनसे आप गुजर रहे होते हैं उससे मैं कनेक्ट करके बताऊं. कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे जब कोई भी एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करते हैं तो उसका टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो रीड करते हैं और उसको चेक लगाते हैं एंड देन वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं. I think no कितनी one. बार किया? नो, कभी किया है? Hardly anyone. हार्डली एनीवन. क्योंकि वो इतनी लंबी टर्म्स एंड कंडीशंस है लेकिन उसमें, बट होता क्या है कि आप उसको अपना एक्सेस दे देते हैं. ठीक है. आपने उसको एक्सेस दे दिया. अब आपको नहीं पता कि उसके अंदर लिखा था कि जी वो आपकी फोटो गैलरी पे भी एक्सेस कर लेगा, आपके नोटपैड्स में आपकी जो ईमेल्स हैं उसको भी एक्सेस कर लेगा. यू हैव नो आइडिया. सो डेटा प्रोटेक्शन वाली चीज भी मैटर्स अलॉट टू यू. ठीक है. और आजकल आपको बहुत अच्छे से पता है जी व्हाट्सएप इजीली आजकल हैक हो रहा है. आजकल हर कोई एक दूसरे से व्हाट्सएप हैक करके वो पैसे मांग रहे हैं. ऑल्दो समझ नहीं आता कि लोग इस तरह करते ही क्यों हैं, क्योंकि आपको वैसे ही 1 से 2 दिन के अंदर आपके फ्रेंड सर्कल में पता चल जाता है कि भाई ये ऑलरेडी एक हैकिंग है. इवन वन ऑफ माय फ्रेंड, तकरीबन लास्ट वीक ही उसका व्हाट्सएप हैक हुआ. सो मुझे उसका मैसेज आया सुबह कि हमारा मुझे कुछ पैसे चाहिए. अच्छा, मेरी उससे जो है वो बात हुए भी साल हो गए, डायरेक्टली ये मैसेज आया. तो मैंने कहा कि यार मुझे भी चाहिए. तो शी वॉज लाइक कि यार मुझे जरूरत है ज्यादा. मैंने कहा यार मुझे ज्यादा जरूरत है, प्लीज मुझे दे दो. सो पॉइंट ये है कि अवेयर आप होंगे ना तो आपके लिए आसानी होगी कि आपने सामने वाली चीज को टैकल कैसे करना है. ठीक है. सो नाउ जब भी आप अपनी कोई एप्लीकेशन को भी इवन डाउनलोड करें तो आप जरा एक्सेस देने से पहले देख लें कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ क्या है. जहां पे ये चीजें आपको डराती हैं वहां पे ये चीजें आपको ये भी बताती हैं कि जी एआई के कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आपकी ऑडिटिंग में, कंप्लाइंस में आपको हेल्प आउट करते हैं, आपका डेटा रिटेंशन में आपको हेल्प आउट करते हैं, और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में किस तरह से वो आपको हेल्प आउट करते हैं. राइट. चलें अब चलते हैं टूल्स की तरफ, जिसमें अभी हमारे पास रिक्वेस्ट भी आई थी मिस मदिया की तरफ से भी कि जी एआई को टूल्स के ऊपर बात करते हैं. अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है 2-3 टूल्स ऐसी होंगे जो आप लोगों ने पहले देखे हैं, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि वो टूल्स मैं आपको जरूर बताऊं
जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन उसमें आपको हेल्प आउट जरूर मिल जाए जब आप उसके काम करने पे आए। सो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ऑलरेडी एक टूल जो है ऑटोमेट किया हुआ है, जिसमें उसने एआई को इंटीग्रेट किया है, कि जिसके थ्रू आपके टास्क मैनेजमेंट्स हो जाते हैं, शेड्यूलिंग हो जाती है, एडजस्टमेंट हो जाती है टाइमलाइंस की, एंड रियल टाइम डाटा के ऊपर दे आर वर्किंग। And still they are I recently had a meeting with the representative of Microsoft, तो जिब्रान भाई से जब मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने एक सेशन भी दिया था, माइक्रोसॉफ्ट का एक इवेंट था, तो उसमें उन्होंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो स्टिल एआई को समझने की कोशिश कर रहा है और उसके ऊपर वर्किंग कर रहा है कि और किस तरह से जो है वो उसको आसान बना सकता है और लोगों के लिए इजी करके उसको पेश कर सकता है, ताकि हर बंदा उसको यूज कर सके। इवन आपने देखा होगा कि डिफरेंट ऐसे मीटिंग टूल्स हैं जिसके अंदर आपके पास आपकी जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं, मैं जो भी बातें कर रही हूँ आपके पास वो सारी आपकी जो है वो रिटन फॉर्मेट के अंदर जो है वो आपके पास आ जाती है, उसकी समरी आ जाती है। और इवन एआई ने अब ये भी चीज कर दी है कि आपके पास एआई डिसीजन मेकिंग के लिए भी बैठा हुआ है, राइट? सो ये चीज भी बहुत दूर नहीं है कि आपके डिसीजन मेकिंग के लिए आपको डरना पड़ेगा कि जी मतलब यू हैव टू वेट फॉर दैट, बट नाउ एआई इज देयर। सो माइक्रोसॉफ्ट के बाद हमारे पास राइट एक टूल है बेसिकली, जो कि प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए और शेड्यूलिंग के लिए बहुत अच्छा है, जो आपके वर्क फ्लोज को जो है बड़ा अच्छा रखता है, ऑटोमेट रखता है। ये आपके टास्क के रिमाइंडर्स वगैरह, इट इज वेरी ग्रेट फॉर दैट। एंड ये आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी जनरेट करके देता है। सो राइक इज वन ऑफ देम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिस्क मैनेजमेंट टूल्स। सो ओरेकल का एक रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली क्लाउड पे इसकी एक सर्विस चल रही है जिसपे दे आर वर्किंग, बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि जो न्यू न्यू टूल्स है ना दूसरे, उनको जरूर ट्राई करने की कोशिश करें, बिकॉज यू नेवर नो कि किस टूल ने आपको किस तरह की कोई नई चीज लाके दे दी है। अब जैसे प्रोग्यू है, वो आपके जितने भी रिस्क होते हैं उनके एनालिसिस करना, उनकी टाइमलाइंस, वो सारी चीजें वो आपको करके देता है। इवन प्रोजेक्ट डिलीवरी से रेलेवेंट भी वो आपको सारी चीजें जो है ना आपके सामने लाके आपको रिकमेंड करके दे देगा कि जी क्या ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको मिटिगेट करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर टूल जिसमें हमारे पास रिसोर्स गुरु है। ठीक है, ये आपकी बेसिकली जो मैंने हर डेफिनेशंस के साथ दो दो टूल जो हैं वो अलाइन किए हैं, क्योंकि अगर हम उससे ज्यादा भी जाते तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो जो रिसोर्स ग्रो है आपके पास, इट्स क्लियरली सेज दैट कि आपकी टीम ऑप्टिमाइज और रिसोर्स की शेड्यूलिंग में बहुत ज्यादा आपको हेल्प आउट करता है। मेवन लिंक जो है वो बड़ा वन ऑफ द टॉप टूल्स है, जो आपके डाटा एनालिसिस के ऊपर आपकी टास्क कंप्लीशन और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और इन सारी चीजों से रेलिवेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर देता है। ओके, yeah. So next tool is for the project monitoring and control, which is a smart sheet. ठीक है, स्मार्ट शीट आपके वर्क फ्लोज को ऑटोमेट कर देता है, आपकी रिपोर्ट्स और जो आपकी रियल टाइम परफॉर्मेंसेस हैं उससे रेलिवेंट आपको रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करके देता है। एंड देन वी हैव अ क्लैरिजन। क्लैरिजन ऑल्सो डू द सेम थिंग्स, बट डिफरेंस दोनों का ये है कि क्लैरिजन जो है वो आपका एटलीस्ट इट्स मोर क्विकर देन द स्मार्ट शीट। ओके, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई हुई है प्रोबेबली, सो वो ज्यादा डेटा आपका जो है कंज्यूम कर सकता है एंड इट कैन गिव यू द मोर इफेक्टिव रिजल्ट। या monday.com, I like the monday.com, although I don't like to go to office on Mondays, but monday.com is one of the good tool as well, which basically automate the status and update everything. Usually होता ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपकी अपडेट्स नहीं हो रही होती हैं कि जी कहाँ तक प्रोजेक्ट आपका पहुंच गया है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल इनसाइड दैट, और आपकी जब अपडेट्स और लैकिंग होती है वहां पे, देन यू हैव टू गिव द, यू आर अकाउंटेबल फॉर समथिंग, राइट? सो अगर आपकी वो चीजें अपडेट होना स्टार्ट हो जाएं और आपकी फोरकास्टिंग आपके सामने आ जाए तो इट हेल्प्स यू अ लॉट। एंड देयर इज अनदर टूल विच इज फोरकास्टिंग। ये बजटिंग में, आपकी टाइमलाइंस में और रिसोर्स नीड में इट हेल्प्स यू अ लॉट। या सो एयरटेबल इज हियर फॉर डिसीजन मेकिंग एंड ब्रीजवे टू। सो ये दोनों टूल्स आपके पास जो है, इट डिपेंड्स कि आपका डाटा कितनी क्लैरिटी है आपके डाटा के अंदर, उस हिसाब से ये आपको रेलेवेंट डाटा जो है जो आपकी डिसीजन मेकिंग है वो देता है। अब जैसे गार्बेज इन गार्बेज आउट का एक यू नो देयर इज अ कोटेशन, सो द पॉइंट इज कि जितना आप गार्बेज इन करेंगे उसी तरह का गार्बेज आउट आएगा।
चैट जीपीटी हम सब यूज करते हैं, बट हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? कितने लोग हैं जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जानते हैं, उन्होंने उसको पढ़ा है और उसकी प्रैक्टिस की है? सो द पॉइंट इज कि अगर नहीं की है तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप लोग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि द पॉइंट इज कि अगर आप चैट जीपीटी को बोलेंगे चैट जीपीटी मुझे पीएमआई की जो है ना वो एआई से रेलेवेंट कोई प्रेजेंटेशन बना के दो, तो जो फरहान साहब बना रहे होंगे ना वही शुजा साहब के पास आ रहा होगा, और वही जो है वो मैडम राबिया के पास आ रहा होगा, और सबकी प्रेजेंटेशन सेम होगी। ठीक है, सब में सेम टूल्स नजर आ रहे होंगे आपको, सब में सेम कंटेंट नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर फरहान साहब उसमें कहते हैं कि जी मुझे पीएमआई से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रेलेवेंट एआई की एक ऐसी प्रेजेंटेशन बना के दो, बीइंग एन पीएमआई एक्सपर्ट एंड द एआई एक्सपर्ट, राइट? सो यू हैव टू गिव दैट प्रॉम्प्ट टू द चैट जीपीटी कि वो अंडरस्टैंड करे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, और उसको शदीद बता दीजिएगा कि थ्रिल का वर्ड तो बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि वो हर किसी के कंटेंट में थ्रिल का वर्ड हमें नजर आता है, तो हम समझ जाते हैं कि ठीक है, इट्स गुड टू यूज चैट जीपीटी, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन थ्रिल का वर्ड टू बी ऑनेस्ट मुझे कहीं नजर आता है तो मुझे लिटरली बहुत बुरा लगता है कि यार यही चीज सब जो है वो पोस्ट कर रहे हैं तो मजा नहीं आ रहा, ट्राई टू डू समथिंग न्यू। ठीक है, सो थैंक यू से पहले मैं जाना चाहूंगी एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का जो मैंने एक टूल आपसे कहा था उसके ऊपर, विच इज साइडर। सो आई डोंट नो व्हाई बट आई लव साइडर अ लॉट। अच्छा, साइडर इज एन एप्लीकेशन, इज अ टूल बेसिकली। साइडर आपके पास क्या कर सकता है, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ बेसिकली कि साइडर आपके लिए बीइंग अ पी प्रोजेक्ट मैनेजर आपको वो किस तरह से और किन किन चीजों में हेल्प आउट कर सकता है। लेट्स हैव अ लुक। साइडर आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है, डेटा की इंटीग्रेशन में कर सकता है, रिपोर्ट ऑटोमेशन में, रिस्क मैनेजमेंट में, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, कोलैबोरेशन, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे हम एक छोटा सा आपके सामने ना वो करते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं। हम करेंगे इसमें ये वो टूल है एक्चुअली जो मैंने कल रात में $2 का परचेज किया है। सो ऑल यू कैन, यू गाइस कैन बाय दिस एंड ट्राई दिस। इसमें हम करेंगे क्या कि मैंने एक पीएमआई का एक डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने अपने पास जो है वो सेव किया है। लेट मी अपलोड दैट डॉक्यूमेंट हियर, और ये आपका काम बहुत आसान बना देता है। ठीक है, लेट्स गो टू द डेस्कटॉप एंड या हियर इज इट, पीएमआई। अब मुझे इस डॉक्यूमेंट से क्या चाहिए, मुझे समरी चाहिए, हाइलाइट्स चाहिए, की कॉन्सेप्ट्स चाहिए, आइडिया चाहिए, लर्न अबाउट द ऑथर चाहिए। मैं ऑथर की तरफ नहीं, मैं चाहूंगी आप लोग बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली यू गाइस वांट, Can we have हाइलाइट्स और समरी? highlights? Highlights, let's go for the highlights. Okay. So ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी हाइलाइट्स हैं वो आपके सामने ला के रख देगा, और जो कि इसने कुछ सेकंड्स के अंदर रख दिए हैं। की सेंटेंस में वो बता रहे हैं कि जी जनरेटिव एआई टूल रिकमेंडेशंस जो हैं वो पीएमआई के लिए वो ये सारी हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल वे में किस तरह से है वो ये सब है। अच्छा, ये अब यहाँ पे एक ऑप्शन देता है आपको, डीप रीडिंग टूल। हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमें फर्दर ऑप्शंस देता है कि जी इससे रेलेवेंट मुझे मुझे लेट्स सपोज कि आई एम अ पर्सन कि जिसको ना रीडिंग में इतना मजा नहीं आता और समझ नहीं आता, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि जी वीडियोस मैं देखूं तो मुझे समझ में आएगा कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया वॉच रिलेटेड वीडियोस, तो जितनी भी वीडियोस इस डॉक्यूमेंट से रेलेवेंट हैं वो सारी वीडियोस के लिंक्स वो मेरे साथ यहाँ शेयर कर देगा। सही, इनमें से मैं किसी पे भी क्लिक करूंगी ये डायरेक्टली मेरे पास यूट्यूब पे ओपन हो जाएगी। लेवरेजिंग जनरेटिव एआई इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लेट्स सपोज एक आपके सामने हम सैंपल भी करके देख लेते हैं। ये हमारे पास एक वीडियो ओपन हो गई है। ठीक है, अब इस पे इसको हम बैक कर लेते हैं टिल देन। ठीक है, वापस आ जाता है। अब इसके बाद हमारे पास अगेन ऑप्शन है कि जी डीप टूल पे जाएं, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स कि जी क्लैरिफाई द की कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफाई द एजम्पशंस। अच्छा, हम की कॉन्सेप्ट्स की तरफ एक दफा चलते हैं कि जी पीएमआई से रेलेवेंट ये क्या हमें बताना चाह रहा है। अच्छा, अब ये कहता है हमें कि भाई, अच्छा ये जो जूम का बार है ना ये बहुत तंग कर रहा है बेसिकली मुझे। ओके, जेनरेटिव एआई क्या है, किस तरह का है, क्या टेक्नोलॉजी है, वो आपको सब बता रहा है। प्रोजेक्ट मैनेज, इस
डॉक्यूमेंट में जो लिखा है वो बता रहा है। अब इसके बाद आपको एक और बड़ा प्यारा ऑप्शन मिलता है, विच इज दिस, कि ये जो भी कंटेंट इसने दिया है ना आपको, अब ये कह रहा है कि मेरा जो भी कंटेंट है साइडर का, उसको अगर आप कंपेयर करना चाहें किस किस से, चैट जीपीटी 4 से तो मैं वो भी दूंगा आपको, क्लॉड सोनेट से वो भी दूंगा, जेमिनाई 1.5, लामा 0.1 मिनी, जीरो, फिर आपकी वही सारी चीजें आ गई हैं। हम अगर इसको क्लॉड से लेते हैं, लेट्स सपोज, बिकॉज आई लाइक क्लॉड ऑल्सो 3.5 सोनेट, ये बहुत अच्छा है और ये आपको बहुत रेलेवेंट चीजें जो है वो इजीली, इजी वे में एक्चुअली वो निकाल के आपको दे देता है, विच आई रियली लाइक दैट। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या किया कि सेम पॉइंट्स को फर्दर एलैबोरेट करके और अच्छे पैटर्न में उसने बता दिया कि जी जनरेटिव एआई की इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरह से हो सकती है, कहाँ कहाँ हो सकती है, प्लानिंग में हो सकती है, टाइम एंड कॉस्ट मैनेजमेंट में, कंट्रोल मैनेजमेंट में, प्रोटोटाइपिंग में, रिस्क मैनेजमेंट में। अच्छा, अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसकी मैं भी आपसे बात कर रही थी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या चीज है, ठीक है, तो उसमें किस तरह से क्राफ्टिंग करनी है। देखिए यहाँ पे इसने बड़ा प्यारा प्यारे अंदाज में लिखा है, द प्रैक्टिस ऑफ क्राफ्टिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर एआई टूल्स, कि जी आपने एक्ट एज अ रोल में, जैसे मैंने बताया कि जी मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि जी एक्ट एज अ पीएम एक्सपर्ट, तो मैंने भाई मेंशन कर दिया जी प्रोजेक्ट मैनेजर एक्सपर्ट। ठीक है, फिर क्वेश्चन, कर्ली ब्रैकेट्स क्या आपको बताते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या बताते हैं आपको, ये ब्रैकेट्स किस तरह से बताते हैं, दीज आर द थिंग्स। फिर ये डिलीवरेबल्स क्या हैं, किस तरह से हैं। सो साइडर, अच्छा साइडर एक और बड़ी प्यारी चीज करता है, लेट मी साइडर क्या करता है कि आप किसी भी पेज पे जाएंगे, लेट सपोज पीएमआई का मैं एक ऐड चेक करना चाह रही थी कि पीएमआई का एक मुझे ऐड मिल जाए, साइडर क्या करता है कि मैंने यहाँ पे इसको एक्सटेंशन मैंने लगाई हुई है, अब जो भी पेज मेरे सामने है ना जो ओपन हुआ हुआ है, साइडर मुझे इस पेज पे मुझे ऑप्शन देगा कि मैं ये पेज रीड कर लूं। मैंने इसको बोला कि जी ये पेज आप रीड कर लें, ठीक है, तो अब जितनी भी चीजें इस पेज के अंदर लिखी होंगी ना, अब ये उसके हवाले से मैं इससे हाईलाइट्स मांग लेती हूँ। तो ये आपका जो भी विंडो ओपन होगी ये उसको भी रीड करके उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर कर सकता है, चाहे वो गूगल का कोई चीज, कोई आपका टैब खुला हो, चाहे वो आपकी कोई पीडीएफ ओपन हो, चाहे आपका एक्सेल खुला हो, चाहे आपकी प्रोजेक्ट से रेलेवेंट कोई भी चीज आपके पास सामने खुली हो, उसी इसने अपनी सारी जो है वो फाइंडिंग्स यहाँ पे दे दी है। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू एवरीवन, एंड if anyone have any kind of questions, so the floor is open. मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा बहुत मैं बता सकूं जितना मुझे आता है। Anyone have any kind of question? Please ask. मारा, थैंक यू आपका। आपने काफी डिटेल बताया, आपने बहुत सारे टूल्स बताए, लेकिन वो आपने हम्म डिस्क्लोज नहीं किया जो आपने खुद टूल यूज किया था अपने फैशन डिजाइन के लिए, क्योंकि वे बाकी जितने भी थे काफी टेक्निकल थे। और जिसमें हम्म आपने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया, वो स्पेसिफिक वो कौन सा टूल था जो कि बीइंग आपने वो फैशन डिजाइनिंग के लिए यूज किया? बहुत अच्छा आपका सवाल है, वो मैं बिल्कुल डिस्क्लोज कर सकती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है उससे। दैट इज बेसिकली एन एप्लीकेशन which is named with the photo lab actually, ठीक है, वो पेड एप्लीकेशन है जिसको आप परचेज कर लेते हैं, एंड देन उसमें आपकी डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट पिक्चर्स एंड इमेजेस, यानी जितनी भी आपने मेरी प्रेजेंटेशन के अंदर भी जो आप मेरी पिक्चर्स देख रहे हैं ये मैंने उसी से जनरेट किया है। कि थैंक यू। You're welcome. Any other questions? I think I should. एक और था, जितने भी आपने ये टूल्स बताए जिसके अंदर काफी रिस्क मैनेजमेंट काफी टिपिकल और टेक्निकल हैं, तो ये फ्री होते हैं, किस तरह से टूल्स होते हैं? वी कैन इजीली एक्सेस ऑन गूगल और वी हैव टू बाय एवरीथिंग? मिसाल के तौर पे अगर फोरकास्टिंग रिपोर्टिंग के लिए आपने monday.com का बताया, तो हम्म उसके लिए एक्सेस क्या होगा? आई हैव टू परचेज? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, देखिए कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसमें जो है वो उन्होंने 3 टाइम्स लेट्स सपोज ट्रायल के लिए आपको दे देंगे, जी आप 3 टाइम्स इसको ट्राई एज अ ट्रायल यूज कर लें, आपको समझ में आता है देन आप परचेज कर लें। किसी ने 5 टाइम का ट्रायल दिया है और किसी ने बिल्कुल ही उसमें पेड सिलसिला रखा है, तो हर एप्लीकेशन का एक डिफरेंट जो है वो सिलसिला है। आप वन बाय वन उसको स्टार्ट करेंगे यूज करना तो फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि वो किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं और कौन सा ऐसा टूल है जिसमें आपको परचेज करना पड़ेगा या आप जो है उसको फ्री में यूज कर सकते हैं।
थैंक अच्छा, Thank you मुझे so बताइए much. कि Any other questions? आप या जस्ट वन मोर Yes. जो आपने अभी एक तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की दिखा दी कि किस तरह एआई को यूटिलाइज किया गया है, अदर देन दैट कोई और आपका एक्सपीरियंस है किसी के साथ जो जिसमें आपने कंसल्टेंसी दी हो या किसी ने आपसे कोई प्रोजेक्ट कराया हो इस तरह का? आप सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं, मतलब किसी टूल की बात कर रहे हैं? देर आर मल्टीपल टूल्स. मैग्नेस इज अनदर टूल कि जिसको आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं. आप उसको फाइनेंस में, आप उसको सप्लाई चेन में, आप उसको अपने एचआर के अंदर यूज कर सकते हैं. देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. ये मैग्नेस इज अनदर प्रोजेक्ट, अनदर टूल बेसिकली, या कह सकते हैं सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज कर सकते हैं. देर इज अनदर टूल, अगर आपको टिकटॉक बनाने का शौक है, या आपको अगर यूट्यूब पे अपनी वीडियोस प्ले करने का शौक है, तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा टूल है. या पॉडकास्ट का अगर आपको शौक है, बिकॉज आई डू दैट फॉर माई पॉडकास्ट एक्चुअली. तो उसमें ये है कि मेरे पास टीम रिसोर्स बड़ी कम थी और लिमिटेड थी, तो मैंने ये सोचा कि व्हाई डोंट आई गो फॉर एनी काइंड ऑफ एआई टूल जो कि मुझे हेल्प आउट करे इस चीज में, कि मुझे शॉर्ट्स बना के दे दे. क्योंकि देखें, 2 घंटे के पॉडकास्ट, 1 घंटे का पॉडकास्ट पूरा पूरा सुनने का टाइम किसी के पास नहीं होता, लेकिन फेसबुक पे स्क्रॉल करना और इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने का टाइम हर किसी के पास होता है. तो आई गॉट एन एप्लीकेशन विद द नेम ऑफ wizard.ai. उसमें क्या होता है कि आपने यूट्यूब का लिंक अपना कॉपी किया एंड देन आपने उसमें पोस्ट किया, पेस्ट किया आपने, देन उसके बाद उस पर क्लिक कर दिया, ठीक है. आपको 90 सेकेंड्स के अंदर 90 शॉर्ट्स वो बना के दे देगा. अगर वो भी देखना चाहते हैं तो आई विल शेयर यू माय डिफरेंट शॉर्ट्स विद यू गाइस आल्सो, नो Yes, प्रॉब्लम विद please, दैट. please do that. और उसमें अगर, और आपको अगर अपनी ब्रांडिंग करनी है तो आप उसमें अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं. देन यू हैव टू परचेज एक्चुअली. वो खैर Right. उसका रिजल्ट परचेज करने में ही अच्छा, ज्यादा बेटर आता है. Okay. एनी अदर क्वेश्चन, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 8:05. Yeah. So we have our president Rabia Salim here with us. So I think she Okay. would like to add on something. Yes, please. अस्सलाम वालेकुम हमारा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? Walaikum assalam. Good to see another lady on the field. I love that. Thank you so very much. Thank you so much for giving a wonderful session. And I guess this is the need of the time. Thank you so much, Shuja and Farhan, for facilitating Amara to the best for the chapter. And I would also like to thank all the attendees जो यहाँ पर थे. I have attended a very few moments of the sessions, bits and pieces में जहाँ you were talking about how AI can help me in marketing या IT या different fields. So I'm coming from that background. So really informative session. Thank you so very much on behalf of the chapter. Thank you so very much. Thank you so much for having me. Thank you, I Amara. guess we can conclude the session. Yes. फरहान वो कोई फोटो सेशन करना है Yes, तो we want to do, if everyone available can turn on their camera just for a minute so we can do a group photo. Please, please. मेरी बहुत अच्छी आनी चाहिए ना, अदरवाइज Yeah. फिर मुझे एडिट करनी पड़ेगी. Yeah, I'm sure you ये can do that. screen sharing बंद हो जाए पहले you are an अगर. expert in that. Oh yes, yes, yes. Let me do that. Sorry हम for तो that. एडिट भी कर लेंगे फोटो लैब में से. प्रॉब्लम तो हमें होगी एडिट करने में. कोई बात नहीं, I can do it for you, no problem. इतना तो मैं आप लोगों के लिए कर सकती हूँ. So we got one more person coming in. हाँ, बल्कि हाँ, मुझे तो अपना कैमरा बिल्कुल सही रखना है. So I should look good. So let me try it. पर पूरा सेशन शायद नहीं आया है या आई डोंट नो. Yeah, I'm just trying that right now. अच्छा प्लीज. हाँ आप करें अभी फहद भी आ गए. Okay. I think Fahad is spinning. हाँ, Let मैंने me, ले ली है. you've done that? मैंने ले ली है. Okay. हमारे साथ मैं जमील ग्रुप पे साहब शेयर भी हैं. ग्रुप पे शेयर करती हूँ. क्या बात है, Okay. क्या बात है. I'm using the same app, but I think you are चल ठीक है बस हो गई ना. more expert. नाइस Yeah. नाइस.
चलो, थैंक यू, Always there थैंक to यू वेरी help मच us out, huh? एवरीवन। मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा सबको सेट कर लेते हैं। जमील साहब, आप दोनों थोड़ा क्लोज हो जाएंगे ना तो जरा अच्छे आ जाएंगे, दोनों एकदम क्लियर आ जाएंगे पिक्चर के अंदर। यस, दैट्स परफेक्ट। थैंक यू जी। I think I should do like this. ये जमील साहब सुई गैस वाले हैं। जी जी, माशाल्लाह से अभी इनको जो है वो ग्लोबल एआई समिट में अवार्ड भी मिला है सुई गैस को, एआई अवार्ड ऑन मेरिट बेसिस एक्चुअली। रियली? या दे आर डूइंग तो अमेजिंग वर्क टू एआई। अच्छा, वेरी नाइस। Like कुछ even शेयर Latina करेंगे is also doing amazing work. जमील साहब, अगर 2 मिनट में कुछ शेयर कर सकें? जी, हमने एआई बेस्ड एक आपकी मीटर आवाज जरा आवाज कम बहुत आ रही दूर है। से आ रही है। अभी आ रही है आवाज सही आप लोगों को? जी, बेटर। जी, बेसिकली हमने एक जो एक प्रोटोटाइप बनाया है रिसेंटली, दैट इज एआई बेस्ड, जिसमें हम मीटर इमेजेस जो है इनको फिल्टर करते हैं कि इफ दैट इज अ लेजिटिमेट इमेज दैट विल बी फॉरवर्डेड फॉर द प्रिंटिंग, और अगर वो मीटर इमेज नहीं है, रीडेबल नहीं है और क्लैरिटी नहीं है उसमें, तो दैट विल बी रिजेक्टेड। तो इनवैलिड इमेजेस को प्रिंटिंग के लिए आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाता, और दैट इज ऑल ऑटोमेटेड। और डेली हमारे पास जो क्वांटम है दैट इज मोर देन 150K इमेजेस, और फॉर द होल मंथ 3.2 मिलियन के बिल हमें प्रोसेस करने होते हैं। तो एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। चलिए जी, मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बिल्कुल मुलाकात रहेगी। ठीक है जी, शुक्रिया, चलो, बहुत बहुत ठीक है। शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज।